The sky seems to be in a mood of pouring, while the athletes are in full mood of winning. We welcome you back to the indoor convention stadium of Rajiv Gandhi University, where the anticipation is as heavy as the weights lifted. Today, the athletes from various categories will continue to vie for supremacy, showcasing their full strength and resilience. Stay with us as the drama of Day 3 unfolds that will shape who will win as the champion university in the Khelo India University Games 2023. Welcome to women's 76 kg snatch session. And our first contender is Varapam Anjali Devi from Manipur University, going for a target of 70 kg. And here it goes. अंजलि देवी ने अपने प्रयास को सफल कर दिखाया. रेफरी द्वारा उन्हें गुड लिप का इशारा. यशवनी अपने दूसरे प्रयास के लिए यहां पर अग्रसर 70 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य है. उनके सामने पहले प्रयास की अगर हम बात करें तो पहले प्रयास में उन्होंने 65 किलो भार उठाकर अपनी चुनौती को पूर्ण किया था और अब 70 किलो का उनका ये लक्ष्य, उसको भी पूर्ण कर पाने में कामयाब हुई हैं. बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने इस 70 किलो भार को उठाकर अपने दूसरे प्रयास को भी सफलताओं में परिवर्तित किया. The next lifter is Rita from Kurukshetra University, Haryana. In his first attempt of this snatch session in women's 76 kg category, she will be targeting for a whole sum of 72 kg, thus posing a challenge to other contenders. And this was referred as good lift by the referees. श्रिया शिवाजी यूनिवर्सिटी की यह छात्रा अपने प्रथम प्रयास के लिए अग्रसर. 72 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य. इनके सामने 76 किलो भार वर्ग प्रतियोगिता यहां पर चल रही है महिलाओं की. इससे पहले पुरुषों के 81 किलो भार वर्ग के प्रतियोगिता हुई थी और अब ये 72 किलो भार उठाने में कामयाब हुई हैं. शिवाजी यूनिवर्सिटी की यह छात्रा एक अच्छे प्रयास को पूर्ण किया, पहले ही प्रयास को सफलताओं में परिवर्तित किया. अंजलि देवी मणिपुर विश्वविद्यालय की छात्रा, 74 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य. इनके सामने पहले प्रयास में 70 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई थी, अपनी सफलताओं को दर्ज किया था. अब 74 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य, इसको पूर्ण करने के लिए अग्रसर अंजलि देवी. अच्छा प्रयास, मगर उसको प्रयास को बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते ही धरातल पर पुनः वेट को रख दिया, तो ये उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह. ये लिफ्ट उनकी विफल हुई. The next contender is once again Varapam Anjali Devi from Manipur University. Her previous attempt of 74 kg was unsuccessful. It remains interesting to see whether she will be able to reach this feat this time. Pressure is building up, and under the mental pressure, once again a no lift. With this, all the attempts of Anjali Devi is over. Next is serial number 4, Sana from Chhatrapati Shivaji Maharaj University. With his first attempt, she is targeting for a whole sum of 75 kg. With her firm grip on the bar. And this was declared a good lift by the referees. शिवाजी यूनिवर्सिटी की छात्रा अपने दूसरे प्रयास को पूर्ण करने के लिए यहां पर अग्रसर हैं. 75 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य है. उनके सामने श्रिया 72 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई थी अपने पहले प्रयास में, और 75 किलो की यह चुनौती यहां पर शुरुआती क्षणों से ही छलक गया ये वेट उनके हाथ से, और यहां पर धरातल पर
रखने पर मजबूर हुई वेट को और ये लिफ्ट हुई अमान्य। 75 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। तीसरा और अंतिम प्रयास। सभी का अभिनंदन, अभिवादन और उसके बाद अपने लिफ्ट के लिए अग्रसर। यहां पर यास्मीन ये प्रयास पूर्ण किया और निर्णायकों द्वारा भी इस लिफ्ट को गुड लिफ्ट करार दिया गया। एक अच्छा प्रयास सफलताओं में परिवर्तित किया। तीसरे प्रयास को भी पूर्ण सफलताओं में परिवर्तित करती हुई 75 किलो इनका बेस्ट रहा। On the stage, the next contender, Shreya Ratnakar Ganamukhi from Shivaji University, Maharashtra. Her previous attempt with a target of 75 kg was not so successful. And once again, she is trying a very quick action resulting in no lift. With this, all three attempts of Shreya is over. Targeting a feat of 76 kg. Coming on the stage is Rita from Kurukshetra University, Haryana. Her previous attempt was that of 72 kg in this session of snatch. All ready to hold the bar. And this is declared a good lift by the referees. अगली प्रतियोगी तृप्ति संजय माने जो कि एसपीपी यूनिवर्सिटी की यह छात्रा। लक्ष्य निर्धारित किया है अपने लिए उन्होंने 77 किलो भार उठाने का। देखना होगा इस लक्ष्य को किस तरीके से पूर्ण करते हैं। यदि इस लक्ष्य को पूर्ण करेंगी तो अन्य प्रतियोगियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देंगी। प्रारंभ ही 77 किलो से इनका और बहुत ही सहजता के साथ इसको पूर्ण कर पाने में भी कामयाब हुई हैं। एक अच्छी लिफ्ट। हालांकि दो रेफरीज ने इसको मान्य घोषित किया है, एक ने इसको अमान्य घोषित किया है। जूरी ऑफ अपील का निर्णय आना अभी बाकी है। कंपटीशन को रोका गया है और जूरी के पास निर्णय गया है रिव्यू के लिए। तृप्ति थोड़ी सी निराश जरूर हैं, हताश जरूर हैं, मगर ये हताशा निराशा उनके दूसरे प्रयास को पूर्ण कर देंगी और वो सफलताओं को परिवर्तित करेंगी जरूर, ऐसा सुनिश्चित लगता है। क्योंकि वह पहले ही प्रयास में उठा पाने में तो कामयाब हुई थी, मगर स्लाइडली उनकी एल्बो जो थी वो थ्रो में गई, तो उसको जूरी ने बारीकी से देखा, समझा और उस लिफ्ट को मान्य घोषित नहीं किया। मगर अब उस त्रुटि को सुधार करेंगी और पूर्णतः सुनिश्चित है कि लग रहा है कि ऐसा ये इस लिफ्ट में वो त्रुटि नहीं करेंगी और इस लिफ्ट को पूर्ण अंजाम तक लेकर जाएंगी। नहीं, जल्दबाजी की शिकार हुई, छटपटाहट यहां पर साफ दिखती हुई। दोनों लिफ्ट इनकी अमान्य घोषित हो गई हैं। तीसरा और अंतिम प्रयास इनके पास शेष है। करो या मरो वाली परिस्थिति होगी उनके लिए। उस प्रयास को पूर्ण करना अति आवश्यक होगा। अंतिम प्रयास के लिए यहां पर अग्रसर हैं तृप्ति। देखना होगा यहां तीसरे प्रयास को पूर्ण कर पाएंगी और इस चुनौती को पूर्ण करना उनके लिए बहुत आवश्यक है, नित्यांत आवश्यक। क्योंकि यद्यपि अगर वह इस चुनौती को पूर्ण नहीं कर पाती हैं तो वह इस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगी। तो ये लिफ्ट मान्य घोषित करवाना उनके लिए बहुत जरूरी। अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र किया गया। बेहतरीन, उत्कृष्ट, अतुल्य, सभी का अभिवादन अभिनंदन किया और यहां पर अपनी इस लिफ्ट को अंजाम तक लेकर गई। 77 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं। सना अपने दूसरे प्रयास के लिए यहां पर अग्रसर 78 यानी 78 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। अपने दूसरे प्रयास में, पहले प्रयास में बहुत ही सहजता के साथ उन्होंने 75 किलो भार उठा पाने में अपनी योग्यताओं को सिद्ध किया था। अब 78 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य उनके सामने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वर्ष 2023 बहुत ही सुंदर 78 किलो भार उठाकर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है
और नंबर 1 पायदान पर भी अपना शिरकत करने का उनका प्रयास आगे बढ़ता हुआ। रीटा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की यह छात्रा, 79 केजी इनका टारगेट। देखना होगा इस टारगेट को किस तरीके से पूर्ण करती हैं, इस लक्ष्य को किस तरीके से साधती हैं। इससे पहले 78 किलो उठा पाने में कामयाब हुई थी साना, और इन्होंने 79 किलो अपनी चुनौती रखी है, मगर नहीं, छटपटाट, और वो धरातल पर गिरा। वेट, कमर में थोड़ी सी लचक जरूर आई है उनके। देखना होगा ये प्रतियोगी किस तरीके से अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करती हैं। आखिरी इनका प्रयास 81 किलो भार वर्ग के लिए, यद्यपि अगर 81 किलो को पूर्णतः सफलताओं में परिवर्तित करती है तो नंबर 1 पर पहुंच जाएंगी। फिलहाल अभी ये नंबर 1 पर ही है, मगर नहीं, जल्दबाजी की शिकार हुई और यहां पर अपने ही संतुलन को बिगाड़ बैठी और ये लिफ्ट उनकी अमान्य हुई। मगर फिर भी 78 किलो भार उठाकर यह पहले नंबर पर अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं स्नैच प्रतिस्पर्धा में। क्लीन एंड जर्क की प्रतिस्पर्धा अगर हम बात करें तो यहां पर 78 किलो भार उठाकर साना पहले नंबर पर हैं, और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तृप्ति, जो कि 77 किलो भार उठाकर दूसरे स्थान पर हैं, और रीटा जो कि तीसरे स्थान पर हैं 76 किलो भार उठाकर। Welcome back to Khelo India University Games 2024 4th edition. This is the second session of clean and jerk in the category of women's 76 kg. Our first participant is Yashashwini from Mangalore University with her best of 75 in last session. She's attempting for 85. Unfortunately, it was a no lift. Trying to maintain her posture. And finally success coming to Miss Yashashwini, going for a second attempt in this session of clean and jerk with a weight of 86 kg as her target. The same weight, the same target she failed to achieve in her previous attempt. It remains to see whether she will be able to fulfill her target this time or not. Making a good clean. Now it's time for her make a good jerk, and finally it's a no lift again. In her third and final attempt, Rita from Kurukshetra University, Haryana, once again with her goal set on 86 kg. Her previous two attempts had not given the desired result. It remains to see if she can make it through this time or not. With her firm grip on the bar, and finally a good lift decreed by the referee. Up next is serial number 4, Sana from Chhatrapati Shahuji University, currently trailing at the first position with a target of 90 in this session of clean and jerk. Seriously posing challenges to other contenders. Up next is Anjali Devi from Manipur University, trying to achieve her target of 90 kg weight in this first attempt of clean and jerk in the category of women 76 kg.
and it was given a good lift by the referees. साना अपने अगले प्रयास के लिए यहां पर अग्रसर। दूसरा प्रयास इनका, पहले प्रयास में 90 किलो उठा पाने में नाकामयाब रही थी, मगर दूसरे प्रयास में क्या ये भार उठा पाने में कामयाब होती है। पहले नंबर पर चल रही थी स्नैच में, 78 किलो इन्होंने भार उठाया था और यहां पर 90 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं। अपनी दक्षताओं को पूर्णतः सफलताओं में परिवर्तित किया। एक अच्छा प्रयास। शिवाजी यूनिवर्सिटी की छात्रा श्रेया, लक्ष्य निर्धारित किया है अपने प्रथम प्रयास के लिए। क्लीन एंड जर्क के लिए उन्होंने 92 किलो का उनका लक्ष्य। स्नैच की अगर हम बात करें तो उन्होंने 72 किलो भार उठाया था अपने प्रथम प्रयास में। द्वितीय एवं तृतीय प्रयास उनका विफल रहा था, मगर अब स्नैच में 92 किलो का लक्ष्य उनके सामने। इसको सफलताओं में परिवर्तित करने में कामयाब हुई है। हालांकि गुड लिफ्ट करार दिया गया है, मगर 2-1 का निर्णय रहा है। यशवीन अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए अग्रसर। लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने अपने लिए 92 किलो भार उठाने का। इस लक्ष्य को किस तरीके से भेद पाती है, पूर्ण करने में अपनी सफलताओं को परिवर्तित करेंगी, यह देखना अभी बाकी है। प्रयास अच्छा, रणनीति अच्छी, खेल योग्यताएं बहुत अच्छी और उस सभी चीज़ों के समायोजन से यहाँ पर ये लिफ्ट उनकी नो लिफ्ट करार दी गई है। यहाँ का कोई ना कोई कमी जरूर त्रुटि पाई गई। रेफरियों की नज़र में तीनों ही रेफरियों ने उनको सर्वसम्मति से इस लिफ्ट को अमान्य घोषित किया। तृप्ति अपने पहले प्रथम प्रयास के लिए 93 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। एसपीपी यूनिवर्सिटी तृप्ति प्रथम प्रयास। स्नैच की बात करें तो 77 किलो भार उठाया था इन्होंने। दूसरी पायदान पर हैं अभी तक। स्नैच में देखना होगा क्लीन एंड जर्क में इनका प्रदर्शन। अच्छा प्रयास, सफलताओं में परिवर्तित करता हुआ प्रयास। सभी का अभिवादन अभिनंदन किया, धन्यवाद प्रेक्षित किया। अगली प्रतियोगी सना अपने तीसरे और अंतिम प्रयास को प्रस्तुत कर रही हैं। पूर्ण करने का इनका लक्ष्य 94 किलो भार का। यह चुनौती 94 किलो भार उठाने की। सफल सुखद देखना होगा। नहीं, हाथों पर शोल्डर्स में उनके झटका आया है। अंजलि देवी 95 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। मणिपुर यूनिवर्सिटी की यह छात्रा, मणिपुर विश्वविद्यालय की, 90 किलो प्रथम प्रयास में पूर्ण कर चुकी हैं। अब देखना होगा क्या अपने दूसरे प्रयास को सफलताओं में परिवर्तित करती हैं। अगर देखा जाए तो यह उनका बहुत अच्छा निर्णय है कि 95 किलो से स्टार्ट ले रही हैं। बहुत ही सफल, क्योंकि अन्य प्रतियोगियों की अगर हम बात करें तो वो उनसे काफी पिछड़ रही हैं। श्रेया शिवाजी यूनिवर्सिटी की छात्रा अपने दूसरे प्रयास को पूर्ण करने के लिए अग्रसर। 95 किलो भार उठाने का लक्ष्य उनका सामने। इससे पहले अंजलि देवी ने इस लक्ष्य को पूर्ण किया था। अब देखना है कि क्या श्रेया इस लक्ष्य को भेद पाती है। अगर बात करें तो अंजलि और श्रेया में ही टक्कर चल रही है आपस में। पूर्ण किया, गुड लिफ्ट। 96 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। ये चुनौती अपने प्रतिद्वंदियों को देना चाहती हैं, 96 किलो। और अगर हम बात करें तो वह अभी स्नैच की अगर हम बात करें तो 77 किलो उन्होंने उठाया था और दूसरी पायदान पर थी, यानी कि दूसरे नंबर पर थी। अब देखना होगा यहां पर अगर ये वेट को उठाती हैं तो पहले नंबर पर पहुंच सकती हैं।
लंबी गहरी सांस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वेट को उठाया और यहां पर समानांतर पैरों को रखा और बिल्कुल सही। देखना होगा निर्णायकों का निर्णय बिल्कुल सही। रेफरीज ने तीनों निर्णायकों ने इस एक मत से सर्वसम्मति से इस लिफ्ट को मान्य घोषित किया गया है और एक ये प्रयास बहुत अच्छा। शिवाजी यूनिवर्सिटी की श्रेया अपने तीसरे और अंतिम प्रयास में 97 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। शिवाजी स्टेडियम की शिवाजी यूनिवर्सिटी तीसरा और अंतिम प्रयास 97 किलो, लक्ष्य बहुत बड़ा। देखना होगा इस लक्ष्य को किस तरीके से भेदती है। अच्छा प्रयास, सफलताओं में परिवर्तित करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर। देखना होगा दोनों पैरों को समानांतर खड़ा करना होगा। थोड़ी सी छटछटाहट सी है, देखना होगा निर्णय क्या रहता है। समय सीमा तो समाप्त हुई मगर यहां पर निर्णय 2-1 का गया है, यानी कि मान्य घोषित किया गया है। मणिपुर यूनिवर्सिटी की अंजलि देवी जो कि अपना लक्ष्य निर्धारित कर रही है 99 किलो भार उठाने का। सभी की निगाहें इस लिफ्ट पर। इनका तीसरा और अंतिम प्रयास है। अभी तक के इनके दोनों प्रयास सफल रहे हैं। 90 किलो और 95 किलो सफलताओं में परिवर्तित किया था क्लीन एंड जर्क का। तीसरा और अंतिम प्रयास 99 किलो के लिए मणिपुर यूनिवर्सिटी की छात्रा। नहीं, थोड़ी सी चूक हुई, बहुत ज्यादा पैरों को खोला और बार जो थी शोल्डर से पीछे गई। पीछे जाने के बाद अपना संतुलन बना पाने में असमर्थ रही और वहां पर यह लिफ्ट इनकी अमान्य घोषित हुई और इसी के साथ 96 किलो इनका बेस्ट रहा है क्लीन एंड जर्क का। उसी से संतोष करना होगा। और क्लीन एंड जर्क प्रतिस्पर्धा की ये आखिरी प्रतियोगी तृप्ति, एसपीपी यूनिवर्सिटी की ये छात्रा, और लक्ष्य निर्धारित किया है 100 किलो, यानी कि स्नैच में अभी ये दूसरी पायदान पर थी, सेकंड नंबर पर थी। रजत पदक से अब ये स्वर्ण में परिवर्तित करना चाहती है अपने लक्ष्य को। बहुत ही बढ़िया, उत्कृष्ट और तुल्य। देखना होगा निर्णायकों का निर्णय बिल्कुल सही और ये तीनों निर्णायकों ने इस लिफ्ट को मान्य करार दिया। 100 किलो भार उठा पाने में इस छात्रा ने, एसपीपी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने अपनी योग्यताओं को सिद्ध किया और इसी के साथ क्लीन एंड जर्क की प्रतिस्पर्धा समाप्त हुई। स्नैच और क्लीन एंड जर्क पूर्ण हुआ और अब इसके साथ ही बात करते हैं, यहां पर पहले नंबर पर पहुंच गई हैं यहां पर तृप्ति, जिन्होंने 177 किलो भार उठाकर अपने पहले स्थान को पूर्ण कर लिया है और 160 किलो उठाया है यशस्वी ने और 162 किलो, क्षमा कीजिएगा 169 जो उठाया है वह है श्रेया, जो कि दूसरे स्थान पर रही हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लास्ट में 100 सुनार की, एक लोहार की और तृप्ति ने यहां पर 100 किलो भार उठाकर 177 कुल योग करके पहला स्थान लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और ये पल है वो समय जब खिलाड़ियों के खेल कौशल के लिए उनको सम्मानित किया जाएगा, उनके उत्कृष्ट खेल के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। सम्मानित करना, प्रोत्साहित करना और उनकी योग्यताओं के लिए उनको पदक पहनाकर सना छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी की छात्रा, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में कुल वजन उन्होंने उठाया है 168 और कांस्य पदक विजेता बनी है सना, जिन्होंने 78 किलो उठाया था स्नैच में और 90 किलो उठाया था उन्होंने क्लीन एंड जर्क में। कांस्य पदक विजेता, गणमान्य अतिथियों द्वारा उनको पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। श्रेया जो कि रजत पदक विजेता बनी है शिवाजी यूनिवर्सिटी की, 169 उन्होंने उठाया वेट और उसके बाद वह बनी है रजत पदक विजेता। एक बहुत ही अच्छी खेल कौशल को उन्होंने प्रस्तुत किया। 72 किलो स्नैच रहा और
97 किलो उन्होंने क्लीन एंड जर्क किया। तृप्ति संजय माने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वर्ष 2023 की स्वर्ण पदक विजेता 76 किलो भार वर्ग में महिलाओं की श्रेणी में, अग्रणी श्रेणी में यहां पर स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को। तृप्ति संजय मान जो कि एसपीपी यूनिवर्सिटी की छात्रा, 177 किलो कुल भार इनका रहा है। 77 किलो इन्होंने उठाया था स्नैच में और अपना 100 किलो भार उठाया इन्होंने क्लीन एंड जर्क में और पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वर्णिम सफलताएं दिलाने वाली अपनी यूनिवर्सिटी को तृप्ति संजय माने। और खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनके खेल कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यही वो मंच है, यही वो खेल है जो कि खिलाड़ियों को निखारता है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आगे अग्रणी करता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये एक ऐसा मंच है जो आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की एक नई पौध को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। सभी के सहयोग से भारत सरकार, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये ड्रीम प्रोजेक्ट, माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना, उस सपने को साकार होते हुए हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि खिलाड़ियों की योग्यताओं को यहाँ पर निखारा जा रहा है। आने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वह अपने अतुल्य खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। We have here Sana from Chhatrapati Shahuji Maharaj University and she bagged the bronze medal in the 76 kg women category. So Sana, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपकी जीत में, और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आप इस वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली वेट लिफ्टिंग में आपको इंटरेस्ट कैसे आया? मैं एक्चुअली इंटर स्कूल से पढ़ती थी। मैं सबसे पहले मेरी यहाँ पे ख्वाहिश नहीं थी वेट लिफ्टिंग करने का, ऐसा कोई इरादा नहीं था। सोचा था कि रेसलिंग करूँगी। 2016 में साक्षी मलिक मेरा मोटिवेशन थी, बट चेंज हो गया, वेट लिफ्टिंग में आ गया, पता नहीं चला। लेकिन ये सब मेरे कोचेस की वजह से हुआ है। तो जैसे कि मुझे पता है कि आप एक मुस्लिम रिलीजन में, आप मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन को मानते हो और वहाँ पे थोड़ी वुमेन को लेके, वुमेन के लिए थोड़ा बंदी होता है, तो फिर भी आप वेट लिफ्टिंग तक आए हैं। किसका सपोर्ट मिला आपको, कैसा सपोर्ट मिला था? अगर सपोर्ट की बात देखी जाए तो सबसे पहले तो फैमिली है। फैमिली में अम्मी और पापा हैं जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ने का वो दिया है। जैसे कि आप बोल रही हैं कि हम लोग मुस्लिम हैं, तो ये बात हकीकत है, बट अगर घर से सपोर्ट मिलता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर इस मेडल की बात करी जाए तो इसमें मेरे सारे कोचेज़ और मेरे फरीद भाई और मेरे फैमिली की मेहनत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सना। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। Right now we have Shreya from Shivaji University and she bagged the silver medal in the 76 kg women category. So Shreya, तो कैन यू प्लीज़ आप और बता सकते हैं व्यूवर्स को कि आप जो वेट लिफ्टिंग में है इस पे आपका डाइट, आपका रूटीन, आपका एक्सरसाइज किस तरह का रहता है? हमारा तीन टाइम प्रैक्टिस रहता है, मॉर्निंग, दोपहर में और इवनिंग में। तो 3 टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है हमें और पूरा मतलब डेडिकेट करके करना पड़ता है मेडल के लिए। पूरा साल मेहनत करना पड़ता है, मतलब अच्छा करना है इसलिए। तो इसके बाद अभी आप तो सिल्वर मेडल ले आई, इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं कि आगे कौन सा कंपटीशन में भाग लेना है, किस तरह का आपका फ्यूचर गोल्स है? अभी तो अगले साल जो नेशनल आएगा उसमें अच्छा करना है, इससे भी बेटर और अच्छा गोल्ड मेडल लेके जाना है। तो कोई है स्पेसिफिकली जिसको आप थैंक यू धन्यवाद देना चाहेंगे? हाँ, जो मेरे कोचेस हैं उनको, मेरे माँ पापा को और मेरा एक फ्रेंड है इसको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये है इसलिए मैं आज इधर हूँ। So we have here Miss Tripti Mane from representing her university, Savitribai Phule Pune University, and she bagged the gold medal in the 76 kg women category. तो Miss Tripti, हम आपसे पूछेंगे कि आप जो वेट लिफ्टिंग है इसमें किस तरह का चैलेंजेस आप फेस करते हैं एज ए वुमेन, एज ए गर्ल, आप किस तरह का चैलेंजेस फेस करते हैं?
वेट लिफ्टिंग करने के लिए ये तो पावर का गेम है, मतलब ताकत बहुत लगती है, तो उसके लिए प्रैक्टिस और टेक्निक इम्प्रूव करना और डाइट करना, ये बहुत मतलब ध्यान दे के करना पड़ता है। तो किस तरह का डाइट आप रखते हैं वेट लिफ्टिंग में? आपको 76 केजी का वेट को आप मेंटेन करना पड़ता है, तो किस तरह का डाइट आप करते हैं जो कि बाकी लोग से अलग होता है? हमें डाइट में चिकन, एग्स और प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो लेते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं कि आगे का क्या प्लान है? किस कंपटीशन में आप भाग लेंगे और क्या करेंगे? मुझे सीनियर नेशनल में गोल्ड मेडल जीतना है, और मुझे इंडिया को मैं पहले भी रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल में, लेकिन मुझे सीनियर में इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, और 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं मेडल लेने की उम्मीद रख के प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी और साई से किस तरह का सपोर्ट मिलता है, बता सकते हैं? हमारे यूनिवर्सिटी से तो सपोर्ट मिलता है, और ये खेलो इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से हमें अच्छा कंपटीशन करने के लिए भी मतलब अपॉर्चुनिटी है। Thank you so much for talking with us. Congratulations once again. थैंक यू। Hello and welcome to Women's 81 kg Snatch. For this event, our first player is Radhika from Himachal Pradesh University, Shimla, with a target of 75 kg. She is lifting the bar, but unfortunately it resulted in a no lift. A good player, but good try, but no lift. Upcoming next was Maganti Kirti from KIT Odisha, but unfortunately she could not achieve her target of 75 kg this time. Now lift. Bar remains at 75 kilograms for the second attempt of number 2, Radhika Katoj. Up next we have Radhika once again from Himachal Pradesh University. She will be going for her target of 75 kg. Her first attempt was a no lift. It remains to see if she can do it this time or not. And here she goes, and here she makes a good lift. This time she has done a good lift. Next we have Maganti Kirti once again from KIT Odisha. Her target will be 75 kg. She failed to achieve this target in her previous attempt. With her grip on the bar. There she goes, and unfortunately too quickly she took the decision. It was a no lift again. Once again on the stage is Maganti Kirti for her third and final attempt. Her target is still 75 kg. It remains to see if she can convert her efforts into success this time or not. And there she goes, and this time success has been achieved by her hands. Next is Reshma from Kurukshetra University, Haryana. Reshma will be going for her first attempt, and her target will be 76 kg. Reshma from Haryana. With a firm grip on the bar, she goes there, and yes! It's declared a good lift by the referees. Good lift. The bar remains at 76 kilograms for the first attempt of number 6, Bhavna. Up next is Bhavna. Bhavna from Dr. Bhimrao Agra University. She will be targeting 76 kg. Bhavna has gripped the bar. With all her efforts, there she goes, and yes, this is a good lift this time. Good lift. In her very first attempt, she is successful. Now we have Hina from Punjabi University, Patiala. Her target will be 78 kg. It will be her first attempt. With a grip on the bar, here she goes.
And this is a good lift. Good lift. The bar remains at 78 kilograms for the third and final attempt of number 2, Radhika Katoj, Himachal Pradesh University. Up we have from Himachal Pradesh University Shimla, Radhika Katoj. She will be targeting for 78 kg this time. Her first target was 75 kg, which was also a no lift. Her second target is 78 kg, and it's declared a no lift again. Now we have Reshma from Kurukshetra University, Haryana. It will be her second attempt, targeting a score of 79 kg. Will she be successful? And yes, she is successful this time again. Good lift. Next we have Sri Lakshmi Chukka from Andhra Pradesh University. Sri Lakshmi will be targeting a score of 80 kg this time, and with a smooth effort she gets a good lift by the referees. Good lift. Next we have Bhavna from Dr. Bhimrao Ambedkar Agra University once again. This time she will be targeting 80 kgs. Bhavna and goes here, and she is given a sign of good lift by the referees. Good lift. Once again we have Hina from Punjab University, पहले प्रयास में 78 किलो बहुत ही an AIU silver medalist, senior national gold medalist, and Commonwealth Games silver medalist. She will be going for an attempt of 82 kg. Will she be able to convert all this experience of hers into success? Remains to be seen. And yes, she has been able to convert all her experience into success. Again we have Reshma from Kurukshetra University. She will be going for a target of 82 kg, and with her efforts she gets a good lift. Good lift. Up next we have Sri Lakshmi Chukka from Andhra University going for second attempt. She will be targeting for 83 kg this time. नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता दावेदार मानी जा रही है इस बार की स्वर्ण सफलताएं दिलाएंगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय A really experienced weightlifter of her own. प्रदर्शित होगा There goes Sri Lakshmi Chukka, दूसरा प्रयास and here it's given a sign of good lift by the referee. अनुभव है वो अनुभव यहाँ पर साफ छलकता हुआ दिखता हुआ Once again we have Bhavna from Dr. Bhimrao Agra University. She will be going for a target of 83 kg. प्रतियोगियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर This will be her final and third and final attempt. It remains to see if she will be able to make it or not. And unfortunately this was a no lift. रिस्क उनकी मुड़ गई इस वजह से Our next lifter is Sri Lakshmi Chukka, आगरा यूनिवर्सिटी targeting a score of 85 kg from Andhra Pradesh. 80 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य देखना होगा It's in the womb of the time to see if she's successful in her endeavor or not. And with a firm grip on the bar, here she goes, and it's a no lift. Unfortunately, she could not succeed in her endeavor. पूरा रखा था संतुलन बना पाने पंजाब यूनिवर्सिटी की Now we have लक्ष्य निर्धारित किया है student of Punjabi University, Hina, 80 किलो भार उठाने का targeting for a वुमेन्स रैंकिंग की weight of 86 kg. यूनिवर्सिटी की स्वर्ण पदक Her previous attempts were quite successful. It remains to see if she can improve her score with this last attempt of snatch or not. यह तो समय के गर्भों में है And here goes our Hina. स्नैच का 86 किलो
Unfortunately, too quickly a decision taken. She could not make it a successful lift. और स्वागत है आप सभी का यहां पर 81 किलो भार वर्ग में महिलाओं की प्रतिस्पर्धा दूसरे चरण की प्रारंभ होने जा रही है। क्लीन एंड जर्क स्नैच प्रतिस्पर्धा इससे पहले पूर्ण हो चुकी है। अब क्लीन एंड जर्क में पहली प्रतियोगी आई हैं कृतिका, जो कि KIIT यूनिवर्सिटी की छात्रा। 96 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य उनके सामने। देखना होगा इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करती हैं। काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं कृतिका, जो कि जूनियर नेशनल में प्रतिनिधित्व कर चुकी है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और देखना होगा यहाँ पर क्लीन एंड जर्क में किस तरीके से अपने खेल योग्यताओं को प्रदर्शित करती हैं। 75 किलो इनका बेस्ट रहा था स्नैच का, और यहाँ पर 96 किलो क्लीन एंड जर्क का पहला प्रयास सफलताओं में परिवर्तित किया। निर्णय तीनों ही निर्णायकों द्वारा इनके पक्ष में रहा। राधिका दूसरी प्रतियोगी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की छात्रा। 97 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वर्ष 2022 की रजत पदक विजेता हैं। जूनियर नेशनल की कांस्य पदक विजेता और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। देखना होगा यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दूसरा संस्करण जो है, ये चौथा संस्करण, तीसरे संस्करण की रजत पदक विजेता है। चौथे संस्करण में क्या अपना नाम सुनिश्चित कर पाएंगी मेडल टैली में? 97 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट उत्तुल्य। नो लिफ्ट करार दिया गया है। यहां पर राधिका अपने दूसरे प्रयास के लिए अग्रसर। पहले प्रयास में उनका 97 किलो भार अमान्य घोषित किया गया रेफरियों द्वारा। पुशिंग उसमें दिखी जिसको कि अंतिम क्षणों में त्रुटिपूर्ण रहा, और वो उनका अमान्य घोषित किया गया। देखना होगा उस त्रुटि को सुधार कर पाती हैं, पुनरावृत्ति ना करे उस गलती की तो ज्यादा बेहतर होगा राधिका के लिए। 97 किलो भार, ये प्रयास अच्छा है। तीनों ही निर्णायकों द्वारा इस लिफ्ट को मान्य घोषित किया गया। 97 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं अपने दूसरे प्रयास में राधिका। रेशमा रैंकिंग टूर्नामेंट की रजत पदक विजेता रही हैं और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की यह कांस्य पदक विजेता रही हैं। पहला प्रयास 100 किलो भार उठाने के लिए रैंकिंग टूर्नामेंट और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की पदक विजेता, मेडल विनर। एक्सपीरियंस उनके पास बहुत अच्छा, अनुभव बहुत अच्छा। वो अनुभव आज कितना कारगर सिद्ध होता है उनके लिए, यह देखना अभी बाकी है। 100 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। प्रथम प्रयास क्लीन एंड जर्क का 82 किलो उठा पाने में कामयाब हुई थी स्नैच में। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट। निर्णायकों द्वारा इस लिफ्ट को मान्य घोषित किया गया है और यहां पर 100 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई है। पहले पायदान पर अपना नाम भी दर्ज कर दिया है। देखना होगा अन्य प्रतियोगियों के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, 100 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। हीना पहला प्रयास, प्रथम प्रयास हीना के लिए। यूथ ओपन नेशनल की कांस्य पदक विजेता, वुमेन रैंकिंग प्रतियोगिताओं की रजत पदक विजेता, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की स्वर्ण पदक विजेता हीना। क्या यहां पर स्वर्णिम सफलताएं दिला पाएंगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में? पहला चरण पूरा किया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फोर्स को जनरेट करने के बाद यहां पर दोनों पैरों को समानांतर किया। जर्क बहुत अच्छा। तीनों निर्णायकों द्वारा इस लिफ्ट को भी मान्य घोषित किया गया है, यानी कि 100 किलो भार उठा पाने में अपनी पूर्ण सफलताओं को प्रदर्शित किया। श्री लक्ष्मी आंध्र यूनिवर्सिटी की यह छात्रा, 100 किलो भार उठाने का इनका लक्ष्य। इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करती है? पहला प्रयास है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं। वरिष्ठ नेशनल चैंपियनशिप यानी कि सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की रजत पदक विजेता श्री लक्ष्मी आंध्र। अच्छा प्रयास, लंबी गहरी सांस के साथ जर्क लेना। अब दूसरा चरण इनका बाकी। प्रथम चरण पूरा किया, दूसरा चरण भी बहुत ही सहजता से पार करना चाहती थी, चूक हुई। कमर पर उनके थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर आया है। यहाँ पर मसल्स पर क्रैम्स पड़ता है और ये खेल ही ऐसा है, शक्ति के साथ साथ आपको सूझबूझ की अति आवश्यकता होती है। अपना प्रथम प्रयास
पूर्ण करने के लिए अग्रसर हैं। 100 किलो की चुनौती, लक्ष्य उनके सामने 100 किलो का। इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करती हैं भावना। स्नैच की अगर हम बात करें तो इनका सर्वश्रेष्ठ रहा है 80 किलो। अभी चौथे नंबर पर चल रही हैं, मगर देखना होगा यहां पर किसी भी क्षण किसी भी पल परिवर्तित हो सकता है स्कोरबोर्ड। बहुत सही। 100 किलो भार उठा पाने में अपनी योग्यताओं को पूर्ण किया। कृतिका KIIT विश्वविद्यालय की छात्रा, लक्ष्य निर्धारित किया है दूसरे अटेम्प्ट के लिए 100 किलो। प्रथम प्रयास में 96 किलो उठा पाने में कामयाब हुई थी। स्नैच की अगर हम बात करें तो 75 किलो भार उठा पाने में कामयाब हुई हैं। छठे स्थान पर हैं, मगर अब देखना होगा क्या अपने इस स्वयं के आकलन में वृद्धि करती हैं। नहीं, पैर उनके आगे चलते रहे, स्थिरता बना पाने में नाकामयाब रही, अपने आप को स्थिर करने में नाकामयाब रही और ये लिफ्ट उनकी अमान्य घोषित हुई। श्री लक्ष्मी, 100 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। आंध्र यूनिवर्सिटी की यह छात्रा श्री लक्ष्मी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उनके पास अनुभव, और वो अनुभव आज यहां पर दिखना चाहिए, प्रदर्शित होना चाहिए। पहले प्रयास में 100 किलो विफल रहा था उनका क्लीन एंड जर्क का। दूसरे प्रयास में क्या इन सफलताओं को परिवर्तित करती हैं, परिणामों को बदलेंगी। अच्छा प्रयास था, जर्क अच्छा लिया उन्होंने, टोस पूरी तरह से धरातल पर थी और यह प्रयास उनका मान्य घोषित किया गया है निर्णायकों द्वारा। राधिका, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की छात्रा, 102 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। इस चुनौती को किस तरीके से पूर्ण करती हैं यह देखना है। 102 किलो अगर इसको पूर्ण करती हैं तो अन्य प्रतियोगियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत करती, मगर नहीं, उसको पूर्ण करने से पहले ही वह अपने संतुलन को बिगाड़ बैठी और यह लिफ्ट उनकी अमान्य हुई। कीर्ति अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए अग्रसर हैं। KIIT यूनिवर्सिटी की छात्रा, 102 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। अब तक की अगर हम बात करें तो 96 किलो इनका प्रथम प्रयास ही सफल हुआ है, दूसरा प्रयास असफल रहा था 100 किलो के लिए। 102 किलो का प्रयास, लक्ष्य बहुत बड़ा है, मगर वो खिलाड़ी ही क्या जो लक्ष्य को भेद ना पाए। नहीं, हुटर के साथ ये लिफ्ट मान्य घोषित नहीं हुई। अत्यधिक समय लिया, मगर वो समय उनके लिए व्यर्थ रहा, पूर्ण कर पाने में नाकामयाब। भावना, 103 किलो भार उठाने का लक्ष्य। दूसरा प्रयास, देखना होगा इस दूसरे प्रयास को क्या सफलताओं में परिवर्तित करती हैं। पहले प्रयास को पूर्ण कर पाई थी 100 किलो के लिए, अब दूसरा प्रयास 103 किलो के लिए इनका लक्ष्य। अभी तक तो ठीक लग रहा है, देखना होगा यहां पर 2 निर्णायकों ने इनके पक्ष में दिया है और एक निर्णायक का निर्णय इनके पक्ष में नहीं है। क्या जूरी का निर्णय भी इनके पक्ष में है? जी हां, इस लिफ्ट को मान्य घोषित किया गया। रेशमा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की छात्रा, अपने दूसरे प्रयास के लिए अग्रसर हैं। पहले प्रयास में बहुत ही सहजता से 100 किलो उठा पाने में कामयाब हुई थी, अब 104 किलो भार उठाने की चुनौती प्रस्तुत करने जा रही हैं। एक 104 किलो, लंबी गहरी सांस, अपने आप को पूरी तरह से एकाग्र किया। एकाग्रता बनानी बहुत जरूरी और इसी के साथ पहला चरण पूरा किया, अब जर्क भी पूरा किया और ये अभी तक समानांतर होना बहुत जरूरी था। नहीं, नो लिफ्ट। प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके पैर धरातल पर
चलते रहे, रनिंग स्टाइल पर रही, जिस वजह से ये लिफ्ट उनकी अमान्य घोषित हुई है। स्थिरता बनानी बहुत जरूरी है, 2 सेकंड के लिए आपको स्थिर होना जरूरी होता है। श्री लक्ष्मी आंध्र यूनिवर्सिटी की छात्रा 104 किलो, तीसरा और अंतिम प्रयास। ये लक्ष्य 104 किलो के लिए उनकी चुनौती। श्री लक्ष्मी काफी इनसे आशाएं हैं, मगर उन आशाओं के परिरूप इनका प्रदर्शन तो नहीं दिख रहा है अभी। अगर यहां पर 104 किलो उठाती हैं तो मेडल टैली में अपने नाम को भी सुनिश्चित कर पाएंगी। ये प्रयास उनका अच्छा था 104 किलो के लिए, और अब पहले स्थान पर पहुंच गई हैं, यानी कि अब मेडल टैली में सुनिश्चित कर रही हैं अपने नाम को। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की रेशमा 104 किलो भार उठाने का लक्ष्य दूसरे प्रयास में विफल जरूर हुई थी 104 किलो भार उठाने में। तीसरे प्रयास में संभवतः उस त्रुटि को पुनरावृत्ति नहीं करेंगी और इस लक्ष्य को भेद पाने में अपनी सफलताएं प्रस्तुत करेंगी। दर्शकों की ओर से पूरी हौसला अफजाई की जा रही है। दोनों पैरों को बराबर लेकर आ गई थी। देखना होगा निर्णायकों के द्वारा निर्णय, 2 ने उनके पक्ष में किया है और 1 ने उनके पक्ष में नहीं दिया है। क्या जूरी का निर्णय भी उनके पक्ष में है? जी हां, गुड लिफ्ट 104 किलो की लिफ्ट उनकी मान्य घोषित हुई। हीना पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की यह छात्रा 105 किलो का इनका लक्ष्य, दूसरा प्रयास। फिलहाल स्नैच में दूसरे स्थान पर थी 82 किलो उठाकर, और क्लीन एंड जर्क में अभी तो चौथे स्थान पर है, मगर देखना होगा अपने व्यक्तिगत में सुधार जरूर आएगा इनके। यह प्रयास अच्छा था 105 किलो के लिए। भावना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की छात्रा 108 किलो भार उठाने के लिए अपनी इस चुनौती को प्रस्तुत करने आ रही हैं, अग्रसर हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। और यहां देखिए अब इनका हौसला, उनके जोश, उनका खेल योग्यता, उनकी क्षमताएं यहां पर प्रदर्शित करेंगी। 108 किलो का लक्ष्य, अच्छा प्रयास है, सभी की ओर से उनको हौसला अफजाई की जा रही है और दर्शकों की यह हौसला अफजाई एक टॉनिक का काम करती है, खिलाड़ी के मनोबल को बढ़ाती है। नहीं, जल्दबाजी और थोड़ा सा अपसेट हुई, अपनी एकाग्रता भंग होते ही उनका ये लिफ्ट भी अमान्य हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की छात्रा तीसरा और अंतिम प्रयास हीना प्रस्तुत करने जा रही हैं और आज का आखिरी अटेम्प्ट है ये। 108 किलो भार उठाने का उनका लक्ष्य। 81 किलो भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा चलती हुई क्लीन एंड जर्क की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, और यहां पर नहीं, ये अटेम्प्ट भी इनका पूरा नहीं हुआ है, नो लिफ्ट करार दिया गया है। और अब ये क्षण, ये पल स्वर्णिम सफलताओं के लिए प्रदर्शित होने वाला वो समय जिसका हर एक खिलाड़ी को इंतजार रहता है। जी हां, पुरस्कार वितरण समारोह, यानी कि पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा उनके खेल कौशल के लिए। जो उन्होंने प्रदर्शन किया है उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको सम्मानित किया जाएगा। उसके लिए सभी खिलाड़ी यहां पर उपस्थित। कांस्य पदक विजेता बनी है 81 किलो भार वर्ग में।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की रेशमा, जिन्होंने कुल भार उठाया है 186 किलो। स्नैच में उनका बेस्ट रहा था 82 किलो और क्लीन एंड जर्क में 104 किलो। रजत पदक विजेता बनी है हीना, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला की छात्रा, जिन्होंने कुल भार उठाया है 187 किलो। स्नैच में 82 किलो और क्लीन एंड जर्क में 105 किलो भार उठाकर रजत पदक विजेता बनी है। श्री लक्ष्मी शुक्ला, जिन्होंने यहां पर स्वर्णिम सफलताएं दिला के 81 किलो भार वर्ग में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता बनी है और अपनी यूनिवर्सिटी को स्वर्णिम सफलताएं दिलाने में कामयाब हुई हैं। 187 किलो इन्होंने कुल भार उठाया था। क्लीन एंड जर्क की बात करें तो 104 किलो और स्नैच की बात करें तो 83 किलो। हालांकि क्लीन एंड जर्क में दूसरे स्थान पर रही थी, वहां पर हीना इनसे ऊपर थी, मगर फिर भी या ओवरऑल टोटल में यह 187 किलो भार पहले उठा पाने में कामयाब हुई है। यानी कि हीना और श्री लक्ष्मी का कुल योग 187 बराबर था, मगर वहां पर प्रथम प्रयास में यानी कि सबसे पहले 187 पूर्ण करने वाली श्री लक्ष्मी को स्वर्णिम सफलताओं से नवाजा गया है। स्वर्णिम सफलताएं दिलाने वाली आंध्रा यूनिवर्सिटी की श्री लक्ष्मी एक यादगार फोटो के साथ तीनों खिलाड़ी एक साथ पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 81 किलो भार वर्ग के पदक विजेता। बहुत बहुत मुबारक इन तीनों ही खिलाड़ियों को, जिन्होंने अपने अच्छे खेल कौशल के साथ सभी को हर्षोल्लास से भर दिया। अभी हम लोग रेशमा के साथ हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड शी वॉन हर ब्रॉन्ज मेडल इन द 81 kg कैटेगरी इन फीमेल। तो मिस रेशमा, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आपका जो प्रिपरेशन है, इस पे आप किस तरह से डाइट और किस तरह का आपका एक्सरसाइज रहा था? सबसे पहले तो मैं अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र को ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। और सेकंड, गुरु नानक खालसा कॉलेज यमुनानगर, वहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने भी हमें फुल सपोर्ट किया है। और थर्ड, हमारे जो हमारी कोच है, उन्होंने भी हमें फुल सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा तो क्रेडिट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से कोच को जाता है, सुरजीत संधू। तो आगे जो लड़कियां हैं, आप उनको क्या हौसला देना चाहेंगे? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मेहनत करो, मेहनत पे विश्वास करो और इधर उधर के कामों से बचो। अपना फालतू अपना ध्यान, मतलब ऐसे वैसी चीज़ों में ना लगाओ, अपना मेहनत करो और उस पर विश्वास रखो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिलेगा ही। Right now we have Miss Neena from Punjab University, Patiala, and she has bagged a silver medal in the 81 kg category for female. तो नीना, आप प्लीज़ बताइए कि आपका प्रिपरेशन कैसा रहा और किस तरह के डाइट आपने मेंटेन किया? जैसे कि मैम, प्रिपरेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि मैं हाफ ईयर एटलीस्ट इंजरी में ही रही। अभी भी मेरी एल्बो की इंजरी है, जिसके कारण गोल्ड गया मेरे हाथ से 180 के से। तो डाइट तो मैम हमारी अच्छी है, मीनिंग कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है पंजाब में, और ट्रेनिंग भी हमारे कोच कराते हैं, उमेश्वरी मैम और अनीता मैम। हाँ जी। इसके बाद अभी नेक्स्ट आप क्या सोच रहे हैं कि आप नेक्स्ट कौन सा कंपटीशन में पार्ट लोगे और आगे का क्या सोच रहे हैं आप? मैम, आगे का तो मेरा जैसे कि नेशनल गेम्स होती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं यूनिवर्सिटी कंपटीशन, उनमें पार्ट लेना और मेडल लेना है मेरा ड्रीम। तो आपकी ही तरह जो आगे लड़कियां हैं, लड़कियां बच्ची हैं, उन लोगों को आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? कुछ बोल दीजिए। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि वेट लिफ्टिंग गेम अच्छी नहीं है, पर मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है ये गेम। वेट लिफ्टिंग हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है इससे बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं बाकी लड़कियों को भी मोटिवेट करूँगी कि वो वेट लिफ्टिंग में आएँ और पार्ट लें। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, आपको फिर से कंग्रेचुलेशन। थैंक यू।
Right now we have Miss Sri Lakshmi ji, who is representing her university, Andhra University, and she bagged a gold medal in the 81 kg category female. Miss Lakshmi, क्या आप बता सकते हैं कि आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए प्रिपरेशन कैसा रहा और आप कैसे शुरुआत किया था आपने वेट लिफ्टिंग? मेरे नाम श्री लक्ष्मी, मैं आंध्रा यूनिवर्सिटी से आया, गोल्ड मेडल लिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। अच्छा लगा रहा है। मैंने 6 साल से वेट लिफ्टिंग किया, अभी जूनियर कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल लिया, अभी अच्छा लग रहा है। अरुणाचल प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। एज अ फीमेल, आप एक लड़की है तो आपको सपोर्ट आपकी फैमिली से किस तरह सपोर्ट मिला? अच्छा लग रहा है, मेरा फैमिली मम्मा पापा ऐसे ब्रदर ऐसे अच्छा सपोर्ट किया, कोचेस सब लोग सपोर्ट किया। अच्छा, Thank you so much for speaking with us. With this, today's weightlifting competition in Khelo India University Games 2023 comes to a close. Today's triumph extends beyond an individual athlete as it profoundly shapes the narrative of the winning university. Join us tomorrow again for more weightlifting competition of Khelo India University Games.